Good morning, all. Today we are going to learn subject English. Lesson number 26. Name of the lesson Water in the Well. This is one story. Okay. Name of the lesson Water in the Well. मतलब कुएं में पानी. उसका मतलब क्या होता है? कुएं में पानी. Okay. So firstly I am read the story. Okay. What a farmer needs most for his fields is a good source of water. Kasim had his eye on a well that was just outside the boundary of his field. But Ahmed, the man who owned the well, was a crafty old man. He wouldn't allow anyone to draw water from his well. He told Kasim, "Why do you come to me again and again to beg for access to my well? I feel sorry to turn down your request every time. I have a suggestion for you. Collect some money and buy the whole well from me." Kasim thought over the suggestion and liked it. He knew Ahmad would ask for a lot of money, but he saw in his mind's eye channels of water running from the well through his field and made a decision. He took all his savings to Ahmad and bought the well. The next day he went to the well happily and dug out a channel. But when he began to draw water, there was a surprise in store for him. Suddenly, Ahmad came forward and announced, "What are you doing, Kasim? How dare you touch the water in my presence? What do you mean? Haven't you sold this well to me?" "Ah, I sold the well all right, but not the water in the well. The water still belongs to me. You can't use it. If you needed the water along with the well, you should have said so. I have a suggestion for you. Pay for the water separately and use it. You can buy fresh water every day. I don't mind." Kasim was shocked to hear Ahmad's argument. It was so unfair, so unjust. He rushed to the Qazi and told him the whole story. The Qazi was a wise man. He told Kasim to bring Ahmad to his court so that he could hear both sides of the case. Ahmad was summoned to the court. The Qazi heard his argument patiently. I see that you are right. What you have sold is the well. The water is all yours, isn't that so? Kazim's heart sank when he heard the Qazi's words. Ahmad, in his heart and hearts, was overjoyed. He had never thought the Qazi would side with him. "My lord, I am so grateful you understand the fine points of this case. The water does indeed belong to me. In that case, Ahmad, why are you keeping it in Kazim's well? You have no right to keep your belongings in his property. You must remove them immediately, or else you can pay a daily rent to Kasim."
then he will allow you to use his well. Ahmad was so confused that he did not know what to say. All the people present in the court began to laugh. But Kazim was a generous man. He never troubled Ahmad for the rent that was due from him. ओके, फर्स्टली मैंने ये स्टोरी रीड की है. अब हम सीखेंगे इस स्टोरी में क्या बताया गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट. नेम ऑफ द स्टोरी वाटर इन द वेल, मतलब कुएं में पानी. What a farmer needs most for his fields is a good source of water. एक फार्मर था, खेती करने वाला एक किसान था, तो उसको अच्छे स्रोत की सबसे अधिक आवश्यकता थी. कासिम had his eye on a well that was just outside the boundary of his field. देखो, ये जो कासिम की वेल है कासिम की जो वेल है वो किधर थी आपको पता है क्या? वो उसका जो खेत है उसकी खेत की जो सीमा है ठीक उससे बाहर वो वेल थी. ओके, बट Ahmad, the man who owned the well, was crafty old man. वो जो कुएं का मालिक था वो बहुत चालाक था. कैसा था? बहुत चालाक था. वो आदमी कैसा था? बहुत चालाक था. He wouldn't to allow anyone to draw water from his well. वो किसी को भी अपने वेल में से, अपने कुएं में से पानी निकालने के लिए अनुमति नहीं देता था. He told कासिम, उसने कासिम को बताया. Why do you come to me again and again to beg for access to my well? Why do you come to me again and again to beg for access to my well? उसने उसको कहा कि तू बार बार मेरे खेत में क्यों आता है और मेरे वेल में से पानी निकालने के लिए, भीख मांगने के लिए क्यों मेरे पास बार बार आता है तू? ऐसे उसने उसको कहा, कासिम को कहा. आई फील सॉरी टू टर्न डाउन योर रिक्वेस्ट एवरी टाइम. मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख होता है तुझे तुम्हारे इस अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, दुख होता है. आई हैव अ सजेशन फॉर यू. कलेक्ट सम मनी एंड बाय द होल वेल फ्रॉम मी. देखो, मैं तुझे एक सुझाव देता हूँ. कौन सा सुझाव? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है. क्या करना है? कलेक्ट सम मनी एंड बाय द होल वेल फ्रॉम मी. कुछ पैसे इकट्ठा करो और मुझसे ये वेल तुम खरीद लो, ये कुआं मुझसे खरीद लो. ओके, नेक्स्ट. Kasim thought over the suggestion and liked it. He knew Ahmad would ask for a lot of money, but he saw in his mind's eye channels of water running from the well through his field and made a decision. He took all his savings to Ahmad and bought the well. कासिम ने एक विचार किया. जो उसने सुझाव दिया था, अहमद ने कासिम को सुझाव दिया था, उसके ऊपर उसने विचार किया और उसे यह पसंद आ गया, उसे वो सुझाव पसंद आ गया. तो उसके बाद क्या हुआ? ही न्यू अहमद वुड आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी बट ही सॉ इन हिज माइंड्स आई
देखो, वह जानता था कि अहमद बहुत सारा पैसा मांगने वाला है मेरे से। अहमद उससे ना बहुत सारा पैसा मांगेगा, लेकिन उसने अपनी मन की आंखों से देखा और उसके खेत में कुएं में से पानी बह रहा है। उसने अपनी मन की आंखों से देखा, कुएं में से पानी बह रहा है। उसने एक निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया उसने? He took all his savings to Ahmed and bought the well. उसने क्या किया? देखो, वह अपनी सारी बचत उसने इकट्ठा कर दी और वो अहमद के पास गया और उसने अहमद से कुआं खरीद ही लिया। The next day, he went to the well happily and dug out a channel. But when he began to draw water, the next day he went to the well happily. दूसरे दिन क्या हो गया? देखो, वो आनंद से हैप्पी होके कुएं के पास गड्ढा खोदने लगा। क्या करने लगा? कुएं के पास वो एक नाली खोदने लगा। परंतु बट क्या हुआ? व्हेन ही बेगन टू ड्रॉ वाटर, जब वो पानी बाहर निकालने लगा था तो वहाँ पानी था। तो वह क्या था? पानी था। There was a surprise. There was a surprise in store for him. Suddenly Ahmed came forward and announced, "What are you doing, Kasim? How dare you touch the water in my presence?" तो उधर कौन आया? अहमद आया। अहमद उधर पहुंचा और क्या बोलने लगा? उसको क्या बोलने लगा? What are you doing, Kasim? How dare you touch the water in my presence? तू इधर क्या कर रहा है? मेरे मौजूद होने पर भी तू मेरे पानी को हाथ लगा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो, उसने क्या कहा? कासिम ने कहा, What do you mean? What do you mean? Haven't you sold this well to me? मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? Haven't you sold this well to me? अरे, तुमने तो यह कुआं मुझे बेच दिया है ना? I sold the well, all right, but not the water in the well. मैंने तुझे ये कुआं बेच दिया है, बट उसका पानी नहीं बेच दिया। और मैंने तुझे उसका पानी बेच दिया है क्या? नहीं, पानी नहीं बेच दिया, मैंने सिर्फ कुआं बेच दिया है। The water still belongs to me. You can't use it. If you needed the water along with the well, you should have said so. मैंने तुझे ये कुआं बेच दिया है, पर मैंने तुझे ये पानी नहीं बेच दिया। ओके, तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते। यदि आपको कुएं के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत है, यदि तुझे कुएं के साथ साथ द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, यू कांट यूज इट। इफ़ यू नीडेड द वाटर अलॉन्ग विद द वेल, यू शुड हैव सेड सो। अगर तुझे इसके साथ साथ पानी की भी ज़रूरत थी तो मुझे कहना चाहिए था ना, मुझे कहना चाहिए था। आई हैव अ सजेशन फॉर यू। मेरे पास एक सुझाव है तुम्हारे लिए। पे फॉर द वाटर सेपरेटली एंड यूज इट। यू कैन बाय फ्रेश वाटर एवरी डे, आई डोंट माइंड। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। वो कौन सा है? पानी के लिए अलग से भुगतान करो। तुम पानी के लिए अलग से भुगतान करो। पे फॉर द वाटर सेपरेटली एंड यूज इट, और इसका तुम उपयोग करो। और तुम हर रोज ताज़ा पानी, यू कैन बाय फ्रेश वाटर एवरी डे, आई डोंट माइंड।
हर दिन हर रोज़ ताज़ा पानी खरीद सकते हो। मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। ओके। कासिम वॉज शॉक्ड टू हियर अहमद्स आर्ग्यूमेंट। देखो, कासिम आश्चर्यचकित हो गया। उसकी जो दलील है, उसकी जो बात सुनकर कासिम कैसे हो गया? हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और यह बहुत अनुचित है, इतना अन्यायपूर्ण था। ये जो उसने उसको कहा था, ये बहुत अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। इट वॉज सो अनफेयर, इट वॉज सो अनफेयर, सो अनजस्ट। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण था। और उसके बाद क्या हुआ देखो। He rushed to the Qazi and told him the whole story. The Qazi was a wise man. देखो, उसके बाद क्या हुआ? वो दौड़कर काजी के पास आ गया और उसने सारी कहानी बता दी। उसने उसको सारी कहानी बताई। काजी एक बुद्धिमान व्यक्ति था। द काजी वॉज वाइज मैन। काजी एक बुद्धिमान व्यक्ति था। He told Qasim to bring Ahmad to his court so that he could hear both sides of the case. देखो, उसके बाद क्या हो गया? उसने कासिम से कहा कि वह अहमद को लेकर कोर्ट में आ जाओ। कोर्ट में अहमद को लेकर आ जाओ। क्या कहा उसने? तुम एक काम करो, अहमद को लेकर कोर्ट में आ जाओ, ओके, ताकि हम उसके मामले में दोनों पक्षों को हम सुन सके। ओके। अहमद वॉज समाउंड टू द कोर्ट। द काजी हर्ड हिज आर्ग्यूमेंट पेशेंटली। उसके बाद क्या हुआ देखो, अहमद को अदालत में बुलाया गया। अहमद को किधर बुलाया गया? अदालत में, कोर्ट में बुलाया गया। द काजी हियर्ड हिज आर्ग्यूमेंट पेशेंटली। और काजी ने उसकी जो आर्ग्यूमेंट है, उसकी जो दलाली है, उसकी जो दलील है, उसकी जो दलील है, उसने वो सुन ली। धैर्यपूर्वक उसने वो दलील सुन ली। उसके बाद देखो क्या हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ? I see that you are right. What you have sold is the well. The water is all yours. Isn't that so? ऐसा है क्या? मैंने सुना, मैं देख रहा हूँ कि आप ही सही हो। That you are right. आप ही सही हो। What you have sold is the well. The water is all yours. Isn't that so? जो आपने बेचा है वह कुआं है। आपने जो बेचा है वो कुआं है। द वॉटर इज ऑल यूअर्स। इजंट दैट सो? ये पूरा पानी ये आपका ही है। ये पानी आपका ही है। क्या ऐसा नहीं है? कासिम्स heart sank. Qasim's heart sank when he heard the Qazi's words. Ahmad, in his heart of hearts, was overjoyed. काजी की बातें ये सुनकर कासिम का दिल बैठ गया। काजी की बातें सुनकर कासिम का दिल बैठ गया। अहमद इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स वॉज ओवरजॉयड। अहमद पूरी तरह बहुत प्रसन्न हो गया। ही हैड नेवर थॉट द काजी वुड साइड विथ हिम। उसने क्या किया? उसने कभी नहीं सोचा था कि काजी उसका साथ देगा। देखो, काजी ने उसको ये बात कही तो उसको बहुत प्रसन्न लगा और उसने कभी नहीं सोचा था कि काजी
उसकी साइड लेगा। उसके बाद माय लॉर्ड, आई एम सो ग्रेटफुल यू अंडरस्टैंड द फाइन पॉइंट्स ऑफ दिस केस। द वाटर डज इंडीड बिलोंग टू मी। My lord, I am so grateful you understand the fine points of this case. The water does indeed belong to me. My lord, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे इस मामले में बारीकियों से समझ में आ गया। मुझे ये मामला अच्छी तरह से समझ में आ गया। The water does indeed belong to me. पानी ये वास्तव में मेरा ही है। ये कुएं में से जो पानी है, कुएं का पानी है, ये वास्तव में मेरा ही है। इन दैट केस अहमद, व्हाई आर यू कीपिंग इट इन काजिम्स वेल? यू हैव नो राइट टू कीप योर बिलोंगिंग्स इन हिज प्रॉपर्टी। इन दैट केस अहमद, व्हाई आर यू कीपिंग इट इन काजिम्स वेल? You have no right to keep your belongings in his property. ऐसी स्थिति में अहमद ऐसी स्थिति में तुम इसे कासिम के कुएं में क्यों रख रहे हो कासिम के कुएं में? You have no right to keep your belongings in his property. देखो, तुम्हें इसे तुरंत You must remove them immediately. तुम्हें इसे तुरंत निकाल देना चाहिए। तुझे क्या करना है? तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि अपना सामान रखने का अधिकार तुझे नहीं है अपनी संपत्ति में। देखो, उसकी संपत्ति में तुझे अपना सामान रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुझे इसे तुरंत निकाल देना चाहिए। ओके? Or else you can pay a daily rent to Kasim. Then he will allow you to use his well. Or else you can pay a daily rent to Kasim. Then he will allow you to use his well. तुम कासिम को दैनिक किराया दे सकते हो। Then he will allow you to use his well. तब वह अनुमति देगा कि उसके कुएं का कैसे उपयोग करना है। Ahmed was so confused that he did not know what to say. All the people present in the court began to laugh. देखो, अहमद कंफ्यूज्ड हो गया। उसको कुछ भी नहीं समझ में आता था। उसको क्या कहना है, क्या बोलना है, ये कुछ भी नहीं समझ में आता था। और all the people present इन द कोर्ट बेगन टू लाफ। देखो, कोर्ट में, अदालत में सभी लोग हंसने लगे, उसके ऊपर हंसने लगे। बट कासिम वॉज अ जनरस मैन। ही नेवर ट्रबल्ड अहमद फॉर द रेंट दैट वॉज ड्यू फ्रॉम हिम। देखो, लेकिन ये जो कासिम आदमी था वो बहुत उदार था। कैसा था? जनरस का मतलब है उदार। जनरस का मतलब क्या है? उदार। ही नेवर ट्रबल्ड अहमद फॉर द रेंट दैट वॉज ड्यू फ्रॉम हिम। उन्होंने अहमद को उससे मिलने वाले किराए के लिए कभी भी परेशान नहीं किया। ये कासिम आदमी कैसा था? बहुत उदार व्यक्ति था, और उसने उसको मिलने वाले जो किराए के लिए कभी भी उसको परेशान नहीं किया। ओके, ये थी पूरी कहानी। क्या नाम था इस कहानी का? कुएं में पानी, वाटर इन द वेल। ओके, इस लेसन के जो क्वेश्चंस और आंसर्स है, तो स्टूडेंट्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू। तो ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कुछ कमेंट्स करो, लाइक्स करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब्स करो। ओके, थैंक यू।